Okay, so you calculate the relative advantage of player one or the max player starting from the root node and sorry, starting from the leaf nodes, and then you propagate those values upwards. Okay, so you start from say the leaf nodes which are here, and then you propagate these values towards the root node, and here you calculate at the root node a value that is the least advantage that that max would get, provided the root node here belongs to the max player. Okay, so if this root node belongs to max player, that means that at this particular point in time, it's the turn of the max player to play. Okay. So this type of an analysis will give you the least advantage that the max player would get, right? Um, so so we were discussing this last time, and let's just go over this again. And the values that you get from here, the values which are shown here, these values are primarily the evaluation, the values that you get from the evaluation function that actually depict uh, the advantage of the maxis player. So a higher value would mean that the advantage is towards the max player. A lower value would mean that the advantage is less advantage is there towards the max player. That means the chances of winning for max have actually reduced. So one here would indicate that the chances of winning for max is very low. Eight here would mean that the chances of winning for max player is much higher compared to the other leaf nodes, and similarly 9 is also here, so 9 is also a higher value that you are actually getting. Okay, so you can calculate this for the complete game, or you can calculate this for uh, a partial tree that is given to you. Okay, so the way you calculate that is that you start from the root node and you start labeling the levels. So you label the level that belongs to that particular player. So for example, here this level belongs, let's say that this level belongs to max. That means that it's the turn of max to actually move. So max could move this way, this move, or this move. And then this level belongs to min. That means that now it's the turn of the min player. So the min player could actually move these three possibilities if max moves this. If max moves this, then min has a possibility of moving these two moves. And if max moves this, then the possibility for min are given by these two particular moves. And similarly, the next level again belongs to max. Okay. So max या ये move करेगा या ये move करेगा obviously और यहाँ पे there is यहाँ पे कोई और choice नहीं है. The game probably ends here. यहाँ पे सिर्फ एक ही चॉइस है जो कि मैक्स के पास अवेलेबल है. यहाँ पे मैक्स के पास दो चॉइसेस अवेलेबल हैं. यहाँ पे अगेन द गेम एंड्स. यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है. यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि मैक्स क्या मूव कर सकता है. Okay, so wherever there is a possibility, for example, here, wherever there is a possibility having two possible moves, so max obviously एक ऐसी move select करेगा जिसमें उसका advantage maximize हो रहा होगा. और अगर ऑप्शन जो है वो मिन प्लेयर के पास अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल हेयर, तो मिन एक ऐसी मूव करेगा जिसमें मैक्स का एडवांटेज जो है वो मिनिमाइज होगा. ठीक है. सो you start from the leaf nodes and then you propagate these values upwards, and then these values would primarily you will go all the way up to the root node. Okay, so let's start from the terminal nodes. So these are the terminal nodes. Okay, these are the nodes जिस जहाँ तक आप अपनी गेम को evaluate करना चाहते हैं, उस nodes तक जहाँ पे आप अपनी गेम को evaluate करना चाहते हैं, you evaluate these nodes and then you start propagating the values upwards. So इससे ऊपर वाला जो level है, let's suppose कि ये level max को belong करता है.
तो if this level belongs to max, तो यहाँ पे you can very clearly see कि max के पास जो है let's start filling these boxes. तो यहाँ पे दो possibilities. तो max कौन सी मूव करेगा? ऑब्वियसली एक ऐसी मूव करेगा जिसमें उसका एडवांटेज मैक्सिमाइज हो रहा होगा. तो ऑब्वियसली सॉरी लेट मी ओके, सो वो इन दोनों मूव्स में से ऑब्वियसली एक ऐसी मूव करेगा जिसमें उसका एडवांटेज मैक्सिमाइज हो रहा है एंड दैट इज दिस मूव. सो मैक्स वुड ऑलवेज मूव दिस, और यहाँ पे उसका एडवांटेज जो है वो 8 है. so obviously if max moves in this direction or moves this particular move, तो यहाँ पे उसका relative advantage जो है वो 8 होगा because max has actually chosen a move that gives you 8. अच्छा, यहाँ पे 5 भी आ सकता है. यहाँ पे 5 उस वक्त आएगा जब ये लेवल जो है वो मिन को बिलोंग करेगा. फॉर एग्जांपल ये मैक्स का ही मूव ना होती, ये मिन की मूव होती, तो ऑब्वियसली मिन इस डायरेक्शन में मूव ना करता क्योंकि यहाँ पे उसका एडवांटेज हायर है मैक्स का, यहाँ पे एडवांटेज उसका मिनिमम है. सो मैक्स वुड हैव एक्चुअली मूव्ड सॉरी मिन वुड हैव एक्चुअली मूव्ड along this direction क्योंकि यहाँ पे मैक्स का एडवांटेज जो है वो मिनिमाइज हो. सो उस सूरत में यहाँ पे 8 की बजाय 5 होता. तो इट डिपेंड्स कि पेरेंट नोड क्या है. अगर पेरेंट नोड जो है ऑफ दीज टर्मिनल नोड्स, अगर पेरेंट नोड इज मैक्स नोड तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और अगर पेरेंट नोड मिन नोड है तो देन यहाँ पे मिनिमम ऑफ द पॉसिबल चिल्ड्रन की जो वैल्यूएशंस है वो यहाँ पे मूव करेंगे. ठीक है जी, ओके. सो okay, so you get an 8 here if this level belongs to max. अच्छा, and similarly इस नोड के ऊपर वैल्यू आपके पास क्या होगी? इस नोड के ऊपर there is no choice. okay, so obviously एक ही मूव पॉसिबल है, तो यहाँ पे ये मेन लेवल हो या मैक्स लेवल हो यहाँ पे 4 ही आएगा because there is no other choice that is available, so you will get a 4 here, right? The next is what 8 because this 9 sorry because this level belongs to max. तो इन दोनों में से वो ऐसी मूव करेगा which has a value greater than 9 sorry maximum value. So the maximum is 9, so ये move obviously वो कर रहा होगा. And similarly यहाँ पे choice कोई नहीं है और यहाँ पे choice कोई नहीं है, तो यहाँ पे value आपके पास 1 and 8 आएगी आपके पास, right? The level above this, इस level को आपने fill कर लिया, this level was max level, तो ये level आपके पास अब min level होगा. So this level which is the triangles, that is the min level. So obviously अगर min के पास यहाँ पे choice हो तो min would always take a move that gives a minimum advantage to max, or minimum advantage of all these three possible moves is 3. So obviously min would go this route. Okay, so you will get a value of 3 here. The other node you will get a value of 6 here. The last one you will get a value of 1 here. अच्छा, और यहाँ पे रूट नोड है. रूट नोड नाउ बिलोंग्स टू मैक्स बिकॉज दिस इज एन एडवर्सरियल गेम. सो बोर्ड जो है दैट स्विचेस बिटवीन मैक्स एंड मिन. सो अब जो रूट है लेवल है दैट बिलोंग्स टू मैक्स. तो ऑब्वियसली अगर मैक्स के पास ये 3 चॉइसेस हों तो वो एक ऐसी मूव करेगा जिसमें वो अपने एडवांटेज को मैक्सिमाइज कर सके. अगर मैक्स जो है वो ये रूट लेता है, अगर मैक्स जो है वो ये रूट लेता है, अगर ये चॉइस ऑफ मूव है, तो देन द नेक्स्ट लेवल बिलोंग्स टू मिन. तो मिन ऑब्वियसली ये मूव करेगा ताकि उसका एडवांटेज कम हो जाए. तो यहाँ पे इस रूट के ऊपर जो मैक्स का एडवांटेज है वो 3 अचीव किया जा सकता है, लेकिन इस रूट के ऊपर 6 अचीव किया जा सकता है और इस रूट के ऊपर 1 अचीव किया जा सकता है, राइट? मैक्सिमम 1 अचीव किया जा सकता है. ऑब्वियसली मैक्स विल गो दिस रूट क्योंकि यहाँ पे उसके पास स्कोर जो है वो ज्यादा अचीव कर सकता है. सो रूट नोड वुड गेट अ वैल्यू ऑफ 6, राइट? Root node would get a value of 6, right? So what is this 6 representing? 6 is representing the least advantage which max can get, and this is the guaranteed advantage. If max जो है वो rationally play कर रहा है और min जो है that is also playing rationally. Okay. Now what if I change these levels? ठीक है, what if I change these levels? अगर मैं बोर्ड की सिचुएशन को उलट कर दूं तो लेट्स से कि रूट नोड अब मैक्स नहीं है, दैट इज min.
ठीक है, और अगला लेवल जो है वो मैक्स को बिलोंग कर रहा है, और उससे अगला लेवल ऑब्वियसली मिन को बिलोंग करेगा, और यहाँ पे गेम एंड हो जाती है, ये आपका बोर्ड खत्म हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो उस सूरत में हाउ वुड दीज वैल्यूज चेंज, व्हाट इज द वैल्यू दैट यू विल गेट एट द रूट नोड इन दिस केस if I alter the code? Okay, Ibrahim is saying that you will get a value of 5. G. Anyone else? If I change these levels, then what is the least advantage that Max could get at the root node? G5 एसन अमीन ने भी जो बात की है वो 5 है. ओके, सारा. Okay, 5. So let's see. दानियाल हारून ने 1 कहा है. Okay, so let's see कि क्या होगा. Okay, so let's start from the terminal nodes. अगर टर्मिनल नोड से आप स्टार्ट करते हैं एंड दिस लेवल बिलोंग्स टू मिन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 8 की बजाय यू विल हैव 5. ठीक है, बिकॉज मिन वुड ऑलवेज टेक अ मूव जिसमें मैक्स का एडवांटेज मिनिमाइज हो रहा है, तो यू विल गेट अ 5 है. यहाँ पे आपके पास 3 ही है, दैट इज गिवन ऑलरेडी. यहाँ पे आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, तो अगर मिन की टर्न होगी तो वो सिर्फ यही मूव कर सकता है और कोई मूव नहीं कर सकता, तो ये 4 ही आएगा. राइट, लेट्स मूव ऑन टू दीज टू नोड्स नाउ. यहाँ पे ऑब्वियसली अगर ये लेवल मिन का है तो दिस विल नॉट बी 2 एनीमोर, दिस सॉरी 9 एनीमोर, दिस विल बी 2, क्योंकि मिन जो है दे वुड ऑलवेज गो दिस रूट टू मिनिमाइज द एडवांटेज ऑफ मैक्स, और यहाँ पे कोई और चॉइस नहीं है, सो यू विल गेट 6 हियर. फाइन. सिमिलरली यहाँ पे मिन के पास कोई चॉइस नहीं है, 1 आएगा, और यहाँ पे मिन के पास कोई चॉइस नहीं है, यहाँ पे 8 आएगा. लेट्स मूव 1 लेवल अबव. ये दिस लेवल नाउ बिलोंग्स टू मैक्स, तो यहाँ पे यू हैव 5 3 4, तो मैक्स जो है वो ट्राई टू मैक्सिमाइज द एडवांटेज, और यहाँ पे 3 की बजाय यू विल गेट अ 5. यहाँ पे 6 ही आएगा. राइट, और यहाँ पे आपके पास जो है वो this is 1 and this is 8, and if this level belongs to max level तो यहाँ पे आपके पास 8 आएगा. ठीक है, and as a result this level is min, so यहाँ पे you will get a 5. Right, okay, so I think ये ठीक है मेरे ख्याल में. Right, so you all agree with this analysis? So this is min, then this is max, and then you have min here, right? And then you have the leaf nodes, and then you can propagate these values. So what is this 5 represent? So you can see कि अगर पहली move min के पास थी, तो then the advantage has further reduced of max, right? So this is how this type
So this gives you an evaluation, and और ये evaluation जो है root पे जो evaluation है, this evaluation is actually telling you what is the least advantage which Max can get. Okay, you can't really increase the advantage, and as I told you, the assumption is that both the players are playing rationally, right? Okay. So the choice in case that the root node belongs to Max will be the middle move, right? And the assumed reaction, because the min is also a rational player, तो obviously अगर उसके पास choice हो कि एक में 9 है और दूसरे में 6 है, तो it would always go for 6. min जो है वो उसका relative advantage जो है इस तरह से उसके पास आएगा. Okay, cut off search का मतलब ये है, तो primarily I've already like in a way dealt with this cut off search idea. The cut off search idea is that you have a truncated tree. That means आपके पास complete game tree नहीं है. You are only dealing with partial game trees, और partial game trees का मतलब ये है कि somewhere in the middle you decide कि आपने evaluate करना है. So let's say कि ये टिक टैक टो गेम थी, और यहाँ पे you don't go all the way down to the terminal nodes जहाँ पे winning और losing हो रही है. You put a cut off somewhere here, और यहाँ पे आप इतने हिस्से को ही आप evaluate कर रहे हैं of your game tree. Let's say, तो इस केस में this would be a depth limited sort of an analysis of minimax. ठीक है, and that is done primarily to identify say an incomplete game. तो कंप्लीट गेम के लिए यू गो ऑल द वे डाउन टू द नोड्स जहाँ पे जाके आप या आप लूज कर रहे हैं, या विन कर रहे हैं, या आप लूज कर रहे हैं, या न्यूट्रल है. ठीक है, तो समटाइम्स इट्स अ वेरी ह्यूज ट्री, तो देयरफॉर आप यू एक्चुअली ट्रंकेट इट, या उसको आप कट ऑफ कर देते हैं एट अ पर्टिकुलर लेवल, और एक पर्टिकुलर लेवल तक आप गेम को वैल्यूएट करते हैं, और उससे नीचे आप गेम को वैल्यूएट नहीं करते हैं. एंड देन यू टेक अनदर से सब ट्री, और उसको आप evaluate कर लेते हैं. You take another sub tree, और उसको आप evaluate कर लेते हैं. तो in that case you have an evaluation function in order to find out that what would happen. Okay, so this is what minimax algorithm is. अच्छा, minimax is, as I told you, is an analysis जिसकी बेस के ऊपर आप अपनी मूव को सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो मिनी मैक्स एनालिसिस जो है, इसमें मैक्स प्लेयर अपनी मूव्स को सिलेक्ट कर सकता है मिनिमाइज एनालिसिस की बेस, मिनी मैक्स एनालिसिस की बेस पे. और दूसरा क्या हो सकता है, मिन प्लेयर अपनी जो है वो मूव सिलेक्शन कर सकता है. जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा, यहाँ पे अगर रूट जो है वो मैक्स को बिलोंग कर रहा है, तो दैट मीन्स के वो मैक्स अपने अपनी फर्स्ट मूव करेगा, फिर मिन करेगा, और फिर मैक्स करेगा, यानी इस तरह से ऑल्टरनेट करता जाएगा. और मैक्स अपनी मूव सिलेक्शन कर सकता है, जी पहले मैं ये मूव करूंगा, फिर मिन अगर ये मूव करता है तो फिर मैं ये मूव करूंगा. एंड इसी तरह से मिन अपनी मूव्स को सिलेक्ट कर सकता है. उसमें यह है कि मिन ये कहता है कि मिन अगर पहले ये मूव करता है, फिर मैक्स ये मूव करेगा, और फिर मैं दोबारा ये मूव करूंगा. तो इस तरह से एंड सो ऑन, एंड दिस वुड गो ऑन एंड ऑन. तो इस तरह से दिस इज हाउ द मिनी मैक्स स्ट्रेटजी वुड एक्चुअली वर्क. ठीक है, सो दिस इज अ टाइप ऑफ बिहेवियर विच यू कैन इम्प्लीमेंट इन एन एजेंट. तो एजेंट कुड बी अ मिनी मैक्स एजेंट. मिनी मैक्स एजेंट का मतलब ये है कि वो एजेंट वो एजेंट खुद भी रैशनल है, और दूसरा भी उसका अपोनेंट जो है वो भी रैशनल है. और एजेंट जो है वुड ऑलवेज ट्राई टू मूव, अगर वो मैक्स एजेंट है, वुड ऑलवेज ट्राई टू टेक अ मूव विच वुड मैक्सिमाइज दी हिज और हर एडवांटेज. और वो एक ऐसी मूव ऑब्वियसली करेगा जिससे दूसरे का एडवांटेज जो है वो मिनिमाइज हो. So this is the type of behavior that you can actually implement. Okay. Okay. So let's just let me just show you a small video. जिसमें, and this is from Pacman, and जिसमें primarily हम minimax behavior को depict कर रहे होंगे. Okay, so I'll just show you.
again a minimax strategy. Okay. I hope you can see this. Okay, great. So this is an environment tic-tac-toe, sorry, Pac-Man environment, or इसमें you have a Pac-Man and you have a ghost. So there are two agents here, right? So let me just show you. These are the two agents that we have here. Okay. So these are the two agents that you have got. You have one agent which is Pac-Man, and the other agent is the ghost agent. Okay, and you have these white dots, and you already know what this game is. इसमें Pac-Man would try to maximize its advantage, और वो अपने advantage को maximize वो कैसे कर सकता है? वो try to eat the dots, ठीक है? और अपने score को maximize करने की कोशिश करेगा. और ghost जो है वो try to minimize the advantage of Pac-Man by catching the Pac-Man before the Pac-Man actually eats this white dot. ठीक है? So what type of behavior would you put? फर्ज करें और let's assume कि Pac-Man का behavior minimax behavior है. That means कि वो obviously अपने advantage को maximize करना चाहता है और ghost के advantage को minimize करना चाहता है. Okay, so in this particular scenario, let's just see कि लेट्स जस्ट सी कि पैकमैन के पास ऑप्शंस क्या हैं. पैकमैन के पास ऑप्शन ये है कि या वो इस डायरेक्शन में मूव करे या वो इस डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है, या वो यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है. और अगर ऑब्वियसली अगर ऊपर की तरफ स्पेस है तो वो ऊपर की तरफ मूव करना चाहेगा. तो दीज आर द 4 पॉसिबल मूव्स जो कि पैकमैन कर सकता है, ठीक है, और वो अपने एडवांटेज को मैक्सिमाइज करना चाहता है, ठीक है. एंड रिमेंबर पैकमैन इज आल्सो रैशनल. सो व्हाट डू यू थिंक, किधर जाएगा? Let's forget about ghost for a while. Left. जी. Why left जी इब्राहिम? Down. ऐसन कहते हैं जी, down. It has the white dot on the left. अच्छा, there is only one white dot here which is next to the ghost. ठीक है, ये वाला white dot नहीं है. तो लेफ्ट साइड पे white dot जो है वो then it will go down. अच्छा ठीक है, तैमूर भी ये कहते हैं कि it will go down. अच्छा, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर ये नीचे की तरफ मूव करता है तो वेयर इज द घोस्ट? एंड यू आल्सो हैव टू कंसिडर कि घोस्ट इज आल्सो रैशनल. दैट मींस कि वो भी करेक्ट डिसीजन करेगा, और वो करेक्ट डिसीजन का मतलब क्या है कि वो अपने जो पैकमैन है उसके एडवांटेज को मिनिमाइज करेगा. तो मैक्सिमम एडवांटेज को मिनिमाइज करने का मतलब क्या है कि द घोस्ट वुड आल्सो मूव टुवर्ड्स द पैकमैन, ठीक है. So in other words, the ghost would chase the Pac-Man. So let's just talk about the Pac-Man now. Pac-Man के पास ghost के पास possibilities क्या हैं? वो या इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा या वो ऊपर की तरफ मूव करेगा. तो आप possibilities क्या हैं? वो क्या करेगा? Let's say कि first move जो है वो Pac-Man के पास है, ठीक है. तो वो अपने एडवांटेज को पैकमैन के एडवांटेज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा. ऑब्वियस सी बात है, ठीक है.
सो लेट्स से कि अगर मैं आपकी बात मान लूं कि पैकमैन नीचे की तरफ मूव करेगा, तो देन हाउ वुड द गोस्ट मूव? व्हाट वुड बी द मूव ऑफ द गोस्ट? सो गोस्ट भी लेफ्ट मूव कर रहा होगा टुवर्ड्स द डॉट। ओके, टुवर्ड्स द डॉट। तो उस सूरत में पैकमैन का पकड़ा जाना जो है बाय द गोस्ट, वो हाउ लाइकली वुड दैट बी? Obviously that would be higher. The probability of getting that the ghost would get caught. uh, जी जी, I mean, the assumption here is कि both are rational, so that means कि वो एक दूसरे की पोजीशन का उन्हें अंदाजा है। ठीक है, एक दूसरे की पोजीशन का उन्हें अंदाजा है। जी, it would definitely move towards the position of the Pac-Man। तो वो डॉट की तरफ मूव, अगर वो लेफ्ट मूव करता है तो दिस वुड ब्रिंग इट क्लोजर टू द पैकमैन। तो ऑब्वियसली वो ऐसी मूव करेगा जो कि उसको उसको जो है वो कैच करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और फिर अगर पैकमैन भी रैशनल है तो फिर वो क्या करेगा? वो अपने आप को ऑब्वियसली बचाएगा। ठीक है, वुड नॉट गेट कॉट। ठीक है, और वो ऑब्वियसली बम्प इन तो नहीं कर जाएगा ना गोस्ट के अंदर। तो अगर वो डाउन मूव कर रहा है और गोस्ट लेफ्ट मूव कर रही है, तो फिर देयर इज अ चांस डेफिनेटली दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगे। ठीक है, और जब वो मिलेंगे बिफोर ईटिंग द डॉट, तो वो गोस्ट वुड ईट द पैक में। ठीक है, और उसको खत्म कर देगा। ठीक, सो लेट्स सी क्या होगा। अच्छा, सो गिवन दिस सिनेरियो नाउ कैन यू प्रिडिक्ट कि क्या हो सकता है? व्हाट वुड बी द मूव्स? किस डायरेक्शन में ये मूव करेंगे? ऑब्वियसली पैकमैन विल ट्राई टू प्रिवेंट इटसेल्फ फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली मरना नहीं चाहता। और गोस्ट वुड ट्राई टू कैच द पैकमैन बिफोर इट ईट्स दैट डॉट। ठीक है, सो देयरफॉर if you implement the behavior of the Pac-Man as a minimax agent, and remember जो ghost है that is also being modeled as a minimax agent, दोनों की जो behavior है they are minimax। minimax behavior of Pac-Man would mean कि वो अपने advantage को maximize करेगा without taking any risks, और ghost जो है वो अपने एडवांटेज को मैक्सिमाइज करने का मतलब ये है कि वो ओपोनेंट के एडवांटेज को मिनिमाइज करेगा, again without taking any risk and by chasing the Pac-Man. Let's see what would happen now. Okay, let me just see. Let me just play this. Right, so this is how this will be played। ठीक है, and you can see कि यहाँ पे किस तरीके से दोनों agents जो हैं they are actually playing this game। ठीक है, खास तौर पे पैकमैन को अगर आप देखें तो दैट इज व्हाट अ मिनी मैक्स एजेंट ऑफ पैकमैन वुड मीन, कि वो पहले अपनी सेफ्टी को इंश्योर करेगा और फिर वो जब वो सेफ होगा देन इट विल गो टुवर्ड्स द गोस्ट, सॉरी टुवर्ड्स द डॉट। राइट, सो दिस इज द बिहेवियर दैट यू विल एक्चुअली बी सीइंग अगर आप पैकमैन में मिनी मैक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। राइट, if you if you implement this in case of Pac-Man। अच्छा, so what would happen अगर आप
So let's move on. So this is primarily an example of minimax agent in case of the Pac-Man game, right? Uh, let's just discuss. So I hope this is clear. इसमें so यहाँ पे जो behavior implement किया गया है Pac-Man का वो minimax behavior है, ठीक है? And you can very easily see कि least advantage उसने अपना ensure किया है, and that is eating the dot. Or so in other words, what we can say here is that Pac-Man is not taking any risks. अगर वो रिस्क ले रहा होता तो वो डॉट की तरफ मूव करता, इन अ होप कि अगर वो डॉट की तरफ मूव कर रहा है तो घोस्ट जो है वो डॉट की तरफ मूव ना करे या उसकी तरफ मूव ना करे. सो देयर इज अ कैलकुलेटेड, सो देयर इज अ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व्ड आल्सो. तो मिनी मैक्स जब आप इंप्लीमेंट करते हैं, सो द प्लेयर इज नॉट रेडी टू टेक एनी रिस्क, ठीक है, as the Pac-Man did in this example. Okay. Um, let's just I'll come to these examples later on, but let's just move on to the second model. The second model is the expecting max model. Expecting max model के अंदर जो है one player is maximizing its advantage, and obviously as in the setting that we have discussed, max is the player that would maximize its advantage, and the other player is primarily considered to be doing a random sort of बिहेवियर, ठीक है? तो वो मिनी मैक्स नहीं है. तो पहले केस जो हमने अभी डिस्कस किया है पैकमैन के केस में भी और पहले जो हमने की है उसमें दोनों प्लेयर्स जो हैं वो रैशनली बिहेव कर रहे हैं. दैट मीन्स कि वो अपने अपने एडवांटेज को सामने रखे हुए हैं. इन केस ऑफ एक्सपेक्टिंग मैक्स एक प्लेयर जो है वो रैंडम बिहेवियर शो कर रहा होगा और दूसरा जो है वो मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर शो कर रहा होगा, ठीक है? और ये उस सूरत में है व्हेन देयर इज अ चांस इन्वॉल्वड हियर. सो लेट्स से कि आप कोई रैंडम रैंडमनेस आपके सिस्टम में इन्वॉल्व होगी है. यानी जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था को एक प्लेयर तो रैशनली प्ले कर रहा है लेकिन दूसरा प्लेयर जो है वो किसी रैंडम प्रोसेस की डिसीजन या रैंडम प्रोसेस की बेस के ऊपर अपनी मूव सेलेक्ट कर रहा है. फॉर एग्जांपल थ्रो ऑफ डाइस है या फॉर एग्जांपल टॉस ऑफ कॉइन है. तो आपने लेट्स से प्लेयर वन जो है या मैक्स प्लेयर जो है वो तो रैशनली बिहेव कर रहा है लेकिन दूसरा प्लेयर जो है वो अपनी मूव करने से पहले कॉइन को टॉस कर, ठीक है, और टॉस के रिजल्ट की बेस के ऊपर अपना अपनी मूव जो है वो सिलेक्ट करता है, ठीक है? So in this case when there is a chance involved, then the behavior or the behavior of the agent is what you call as the expecting max agent, ठीक है? तो expecting max किस तरह से काम करता है? Expecting max के अंदर you have an element of chance here. सो दैट मीन्स कि आप या डाई थ्रो करेंगे या टॉस ऑफ कॉइन करेंगे और उसकी बेस के ऊपर आप अपना डिसीजन लेंगे. तो उस केस के अंदर क्या होगा? In this case, when the modeling is done in case of the expecting max, then the mean agent is no more a rational agent. वो किसी ना किसी रैंडम प्रोसेस की बेस के ऊपर अपना डिसीजन जो है वो ले रहा होता है, ठीक है? सो one player is calculating the expectations and the other player is maximizing the advantage, ठीक है? तो इसमें min max वाला नहीं है कि आपने एक का एडवांटेज मिनिमाइज किया और दूसरे का एडवांटेज मैक्सिमाइज कर रहे हैं. यहाँ पे एक का एडवांटेज जो है वो किसी रैंडम प्रोसेस की बेस के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है और दूसरे वाला जो है वो मैक्सिमाइजेशन की बेस के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है. सो लेट्स टेक दिस सर्च ट्री as an example, ठीक है, which is depicted here. So यहाँ पे आपके पास जो levels होंगे, the levels would alternate between max and chance, ठीक है? तो इसमें min हम label नहीं करेंगे. We'll say that one level belongs to max and the other level belongs to a chance, ठीक है? So the other player, which we called as the min player, okay, sorry, I'll just share this again. Okay. So here is the the basics of expecting max. So expecting max के अंदर you can very clearly see here
कि one level belongs to max and the other level does not belong to min, but the other level is basically the chance level. ठीक है, so it's again a sort of an adversarial game. तो यहाँ पे मैक्स ने एक मूव की और उसके पास चांस नोड आया, चांस नोड में यहाँ पे वो अपनी जो चांस नोड है that would calculate some expectation, that means probability, और उसकी बेस के ऊपर वो अपना चॉइस करेगा डिसीजन लेने का कि क्या इस तरफ मूव करना है या इस तरफ मूव करना है. दिस वुड नॉट बी बेस्ड अपॉन द रिलेटिव एडवांटेज, but it would be based upon some sort of expectation or some sort of probability calculation. ठीक है, तो इसलिए आप इसको चांस नोड कहते हैं या एक्सपेक्टी नोड कह देते हैं. तो यू हैव द मैक्स लेवल फॉलोड बाय द एक्सपेक्टी लेवल और द चांस लेवल. ठीक है, सो लेट्स से कि ये आपके पास एक पार्शियल सर्च ट्री आपके पास आता है. ठीक है, पार्शियल सर्च ट्री आपके पास आता है ऑफ गेम. तो यहाँ पे सो if I apply let's say minimax here, फर्ज करें कि ये चांस नोड नहीं था, यहाँ पे मिन नोड था. ठीक है, तो उस सूरत में आपके पास जो एडवांटेज मैक्स का आएगा यहाँ पे रूट नोड के ऊपर, वो क्या होगा? So what would be the advantage that you will be actually getting? G. So max of min. So the advantage that you will be getting here, as Essen pointed out, that would be 10. क्योंकि अगर ये मिनी मैक्स बोर्ड होता तो यहाँ पे, क्योंकि ये मिन लेवल अगर होता तो यहाँ पे 10 आता और यहाँ पे 9 आता और यहाँ पे फिर आपके पास 10 आता. ठीक है, सो दिस वाज द मिनी मैक्स बोर्ड. लेकिन अगर ये मिनी मैक्स नहीं है, अब ये एक्सपेक्टी मैक्स है. एक्सपेक्टी मैक्स के अंदर यहाँ पे आप मिन कैलकुलेट नहीं कर रहे होंगे. ठीक है, आप क्या कैलकुलेट कर रहे होंगे? आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होंगे ऑफ getting some advantage if you take this move or this move. So what you will have to do is कि हर मूव को आपने एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू असाइन करनी है. तो यहाँ पे लेट्स से कि इस मूव को भी मैं एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू असाइन करूंगा, इस मूव को भी मैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू असाइन करूंगा, इसको भी एक प्रोबेबिलिटी असाइन करूंगा और इसको भी प्रोबेबिलिटी असाइन करूंगा. And let's assume here that the probability that I assign to each move is 0.5 or 1/2. So there is 1/2 chance या 0.5 चांस है कि ऑफ टेकिंग अ पर्टिकुलर मूव. ठीक है, सो अगर मैक्स लेट से ये मूव करता है तो उसके बाद मिन के पास दोनों मूव्स में से सिलेक्ट करना जो है दैट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी एंड द प्रोबेबिलिटी इज 1/2. So probability 1/2 अगर हो तो with 1/2 probability min जो चांस प्लेयर है वो ये मूव सेलेक्ट करता है, 1/2 के साथ वो ये मूव सेलेक्ट करता है, 1/2 के साथ वो ये मूव सेलेक्ट करता है, 1/2 के साथ वो ये मूव सेलेक्ट करता है. So then what would be the advantage that you will actually be getting here? ठीक है, the advantage would be the average utility value या average evaluation or the expected evaluation of this particular node. So expected evaluation of this node क्या होगी? Expected evaluation of this node, if the probability of making this move is 0.5, the probability of making this move is 0.5, then what is the expected value that you will get this node at this node? That is 10. Okay, how do you calculate that 10? This would be, so let's say कि ये probability P1 है which is 0.5, तो यहाँ पे ये value होगी 10 times 0.5 और यहाँ पे भी probability let's say P2 है which is 0.5, so this would be 10 times P2 which is 0.5. so यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है and then you add up these two together and you get a value of 10 again here. ठीक है, so expectation calculate करने का जो formula है that it's actually the summation of the probability of making some move times the utility value that you are getting, and I'll call it UI here. So PI times UI. So probability of making that moves times the advantage that you are getting out of that move. Okay. Times the advantage that you are getting out of that move. So this would primarily be
लेट्स से कि अगर ये तमाम प्रोबेबिलिटीज 0.5 है, तमाम प्रोबेबिलिटीज 0.5 है, सो यहाँ पे दिस वुड बी 10 टाइम्स 0.5, यू गेट अ 5 हेयर, ठीक है, और यहाँ पे you will get a 5 here. What is the value that you will get here? This would be 9 times 0.5, which is 4.5, ठीक है, और यहाँ पे 100 times 0.5, which is 50, ठीक है. सो ये नोड आपके पास एवरेज वैल्यू ले रहा होगा, एवरेज ऑफ 5 + 5 डिवाइड बाय 2, दिस इज प्राइमरली 5 here, और यहाँ पे द एवरेज वैल्यू वुड बी 54.5 divided by 5, ठीक है. So this would be 50 plus 4.5 divided by you simply add up these, oh sorry यहाँ पे 5 नहीं होगा, this would be 10, you simply add up these values and this would be 54.5, ठीक है. Sorry about that, मैं दोबारा उसको half कर रहा, so this will not be the case. So if Max takes this move तो एडवांटेज 10 मिलेगा, अगर मैक्स ये मूव करता है तो एडवांटेज जो है वो 54.5 उसे मिलेगा, ठीक है. तो यहाँ पे जो एडवांटेज आपको मिल रहा होगा मैक्स का वो 54.5 है, रफली 54.5, ठीक है. So you can see कि अगर ये एक्सपेक्टिंग मैक्स, अगर मैक्स इज एन एक्सपेक्टिंग मैक्स एजेंट, so the maximum advantage which Max can get is 54.5, ठीक है. So what is this mean? What does this mean? इसका मतलब क्या है? What is your reflection on the second player? ठीक है, पहला प्लेयर जो है वो तो ऑब्वियसली एक मूव करेगा, लेकिन दूसरा प्लेयर, पहला प्लेयर क्या सोच रहा है, लेट्स से मैक्स क्या सोच रहा है, और वो अपने अपोनेंट के बारे में क्या सोच रहा है. एनीवन, आई मीन यू कैन ट्राई टू, आई मीन अनम्यूट करके भी आप बात कर सकते हैं. सो व्हाट इज मैक्स थिंकिंग अबाउट द गेम, हाउ इज मैक्स लुकिंग एट द गेम, अपने बारे में क्या सोचते हैं और अपने ओपोनेंट के बारे में क्या सोचते हैं. जी सर जी, वो इस केस में उसको मैक्स को 10 की तरफ मूव करना चाहिए टुवर्ड्स द लेफ्ट, क्योंकि अगर वो राइट मूव करेगा तो प्लेयर 2 के पास जो चांस होगा जीतने का वो काफी बढ़ जाएगा, काफी बढ़ जाएगा, ठीक है. लेकिन रिमेंबर दिस इज नॉट द मिनी मैक्स सिनेरियो, ये मिनी मैक्स सिनेरियो नहीं है, ठीक है. दिस इज एक्सपेक्टिव मैक्स, और एक्सपेक्टिव मैक्स में द प्लेयर इज रेडी टू टेक चांसेस, इसलिए तो वो चांस नोट हम कह रहे हैं ना. ठीक है. तो अगर वो सेफ खेलता है तो वो लेफ्ट की तरफ ही मूव करेगा, लेकिन अगर वो सेफ खेल रहा है लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, दैट मींस कि इट्स एक्चुअली अ मिनी मैक्स एजेंट, इट्स नॉट एन एक्सपेक्टिव मैक्स एजेंट. एक्सपेक्टिव मैक्स जब मैं बात कर रहा हूं तो मैक्स इज रेडी टू टेक रिस्क्स, ठीक है, इन अ होप. एंड व्हाट इज द होप हियर, द होप हियर इज के, जी एनीवन, इन व्हाट होप मैक्स विल मूव द राइट मूव, कि प्लेयर 2 9 चूज कर लेगा अपनी मूव में. प्लेयर 2 जो है वो कोई ना कोई मिस्टेक करेगा या कोई ना कोई वो एरर करेगा, ठीक है. सो दैट्स दी होप. सो दिस मींस कि वो अपने ओपोनेंट को वो 100% रैशनल अज्यूम नहीं कर रहा, ठीक है. द मैक्स इज अज्यूमिंग कि शायद वो कोई गलती कर दे उसका ओपोनेंट, और अगर उसका ओपोनेंट गलती करता है तो उसको जो एडवांटेज मिल रहा होगा वो बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू द रिलेटिव एडवांटेज विच मिनी मैक्स के सिनेरियो में मिल रहा होगा. अच्छा, मिनी मैक्स के सिनेरियो में अगर वो लेफ्ट मूव करता है तो एडवांटेज 10 है मैक्स के लिए, और मिनी मैक्स में ही अगर वो राइट, अगर फर्ज करें वो राइट मूव करता है लेफ्ट मूव नहीं करता, तो फिर एडवांटेज उसे क्या मिल रहा होगा, 9. तो द डिफरेंस इज नॉट दैट मच. लेकिन अगर आपका अपोनेंट गलती कर देता है तो देन यू विल गेटिंग 50 अराउंड 55, which is quite high, ठीक है. So Max is actually trying to do what? Trying to exploit
this situation and try to find out or try to identify कि हो सकता है इसका जो player है वो किसी वक्त irrational behavior depict करता है, right? So that's actually the assumption in a hope that the opponent would make a mistake. वो एक ऐसी मूव चूज करता है जिसमें उसका एडवांटेज जो है वो कम हो सकता है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट द एक्सपेक्टिव मैक्स एजेंट वुड लुक लाइक, एंड द वैल्यूज दैट यू कैलकुलेट एट द चांस नोड, the values that you calculate at the chance node, they are called the expected utilities, or in other words the probabilistic advantages that one can actually get. Irrational means ठीक है कि in a hope that your opponent would make a mistake sometime, किसी वक्त, हर वक्त वो हो सकता है वो mistake ना repeat ना कर रहा हो, लेकिन हो सकता है किसी वक्त वो mistake कर, ठीक है. तो आप एक ऐसी मूव करते हैं जिससे वो हो सकता है कि वो गलती करते हैं. So that's right, Ibrahim. So वो try to take a risk, ठीक है. तो ये जो 10 और 55 के करीब जो वैल्यूज आ रही हैं, these are what you call as the expected utilities. तो expected utilities आप कैलकुलेट करते हैं और उसकी बेस के ऊपर आप अपनी जो प्लेयर है वो अपनी मूव जो है वो सिलेक्ट करता है, ठीक है. ओके, नाउ इन दिस सिनेरियो, इस सिनेरियो के अंदर अगर वो मिन मैक्स एजेंट होगा एक, और दूसरा और एक आप एक्सपेक्टिव मैक्स एजेंट है, तो दोनों केसेस में मूव्स कौन सी होंगी, एंड द assumption here again is that the probability of choosing a move is 0.5, ठीक है. एंड रिमेंबर ये सर्कल वाला जो नोड्स हैं, these are the chance nodes. यहाँ पे आप एक्सपेक्टेड यूटिलिटीज कैलकुलेट करेंगे. ये फर्ज करें ये मैक्स नोड है, तो मैक्स अपना जो है वो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कैलकुलेट नहीं करेगा, वो मूव करेगा जो मैक्सिमम उसके पास रिजल्ट हो. तो अगर ये मिनी मैक्स एजेंट हो, एंड द सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग अ मिन एजेंट, तो यहाँ पे लेफ्ट वाली साइड के ऊपर आपके पास वैल्यू 0 आएगी और राइट साइड के ऊपर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 20 आएगी. तो मैक्स वुड ऑलवेज गो अलोंग दिस मूव, ठीक है, इस डायरेक्शन में, विच इज द राइट डायरेक्शन विच इज बीइंग हाईलाइटेड हियर, उसी तरफ मूव करेगा. मैक्स वुड मूव इन दैट डायरेक्शन. और दूसरे केस में अगर वो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कैलकुलेट करता है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग 0 और 40 इज 0.5 ईच, और यहाँ पे भी द प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग टुवर्ड्स 20 एंड मूविंग टुवर्ड्स 30 इज आल्सो 0.5 ईच. तो यहाँ पे दिस वुड, द आंसर दैट यू विल बी गेटिंग ऑन द लेफ्ट will be 20 and the answer that will be getting on the right is 25. So again 25 की तरफ मूव करना, उसके लिए जो है वो obviously that would be the choice, ठीक है. अच्छा, in case of मिनी मैक्स एजेंट, अगर मैं यूटिलिटी फंक्शन जिस तरह से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, या यूटिलिटी वैल्यूज अगर किसी तरीके से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर उसको मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसकी कर दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू 0 और 40 और 20 और 30 आ रहे हैं, लेट्स से मैं इनको स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, उसकी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ, तो दिस इज व्हाट आई विल बी गेटिंग, ठीक है. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं करता हूँ तो लेट्स से कि मैं इन वैल्यूज की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ, 0 0 ही रहेगा, 440 जो है वो जो है उसकी कोई मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, which is like taking a square of that, so you get 1600, और दूसरे केस में 400 और 900 आएगा, that would be say the some sort of a linear transformation that you have got here. और अगर मैं मिनी मैक्स अब अप्लाई करता हूँ, यू कैन सी कि दोनों केसेस के अंदर अगर यूटिलिटी फंक्शन या अगर आपके पास वैल्यूएशन फंक्शन की कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी अगर आप कर दें, तो चॉइस ऑफ मूव जो है वो चेंज नहीं होगी इस केस के अंदर, ठीक है. लेकिन अगर मैं एक्सपेक्टेड यूटिलिटी करता हूँ इस केस के अंदर, या एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कैलकुलेशंस करता हूँ, तो फिर मूव कौन सी हो सकती है सेकंड केस के अंदर, व्हेन देयर इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सो दैट वुड बी द लेफ्ट मूव, ठीक है.
द लेफ्ट मूव, उसकी वजह यह है कि इसकी अगर मैं एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इस नोड की निकालता हूँ, so that would be expected utility of this move under this scenario, this would be 800, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 600 आ जाएगा. So obviously the choice of the move has actually changed. So therefore, expectimax is sensitive to linear transformations of your evaluation function. So you have to keep this in mind. So you have to very carefully find out कि कौन सा आपने utility function use करना है in order to implement expectimax. Okay. Right. So the third one, before I show you a video of expectimax behavior of Pac-Man, let me just complete the expecti minimax. Okay, why do you do a linear transformation? So let's suppose कि आप linear transformation क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि suppose I am deciding, और मैंने एक utility function define कर लिया और एक utility function किसी और ने define कर लिया, और दोनों utility functions के अंदर जो है you can, they are almost same, लेकिन उसमें there is a difference of scale, ठीक है. लेट्स से कि मैं परसेंटेजेस की फॉर्म में कैलकुलेट कर रहा हूँ, दैट मींस कि आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद 100, और दूसरा सिर्फ फ्रैक्शन की फॉर्म में कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है. तो उस इन दोनों केसेस के अंदर जो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है. लेकिन एक्सपेक्टिव मैक्स के अंदर आंसर सेम नहीं आएगा. आई मीन चॉइस ऑफ मूव्स जो है ना वो डिफरेंट हो सकते हैं. तो दैट इज सिंपली टू टेल यू कि अगर दोनों यूटिलिटी फंक्शन सेम हों, दोनों दो डिफरेंट लोग जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम यूटिलिटी फंक्शन यूज करें, लेकिन दोनों का स्केल डिफरेंट हो, और अगर दोनों का स्केल डिफरेंस होगा तो मिनी मैक्स के अंदर तो कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन एक्सपेक्टिव मैक्स के अंदर फर्क आएगा. So that's why we have actually studied this के linear transformation. अगर आप कर दें तो आंसर चेंज क्यों हो सकता है, ठीक है. So let's say कि so similarly इस सिनेरियो को भी आप एक्सपेक्टिव मैक्स सिनेरियो के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये क्या किस तरीके से होता है. Here is an example of the expecting max, or there is a small description given for this example here. If you keep that description in mind and try to solve this puzzle, you will find out move selection क्या होगी. But I'll very quickly move on to, अच्छा एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आपके पास कंप्लीट सर्च स्पेस आपके पास है या पार्शियल सर्च स्पेस है. एक्सपेक्टिव मैक्स के अंदर क्या मैं कुछ लीव्स को अनएवैल्यूएटेड, लीफ नोड्स को, क्या कुछ लीफ नोड्स को अनएवैल्यूएटेड छोड़ सकता हूं या नहीं छोड़ सकता? दैट्स द क्वेश्चन. द आंसर इज कि फर्ज करें मेरे पास यहाँ पे 3 नोड्स थे और एक नोड यहाँ पे भी था. min max के अंदर, and we'll prove it later on when we'll study the pruning part, कि अगर आप किसी नोड को evaluate ना भी करें तो आपके एनालिसिस के अंदर यहाँ जो मूव सिलेक्शन है उसके अंदर फर्क नहीं आएगा, ठीक है, प्रोवाइडेड देयर इज अ रूल ऑफ लीविंग अ पर्टिकुलर नोड. लेकिन एक्सपेक्टिव मैक्स के अंदर अगर आप किसी नोड को छोड़ते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, और अगर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी चेंज होगी तो उसके मतलब ये होगा कि आपकी चॉइस ऑफ मूव्स जो हैं दैट वुड आल्सो चेंज. तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे 5 था और आपने इस 5 को एवेल्युएट ही नहीं किया, इस नोड को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड यूटिलिटी आपकी जो थी वो 3 होगी if you neglect it. लेकिन if you add it, then the expected utility would be different. Obviously 3 नहीं होगी, ठीक है ना. So अगर आप इसको include करते हैं या इस नोड को आप exclude करते हैं, आपकी expected utility change होगी, और expected utility जैसी change होगी आपकी choice of moves जो है that would also change, ठीक है. So you have to be careful in this expecting max. Pruning of a certain node cannot be done or should not be done. Okay, so I'll just move on to the last one, which is the expecting minimax. Expecting minimax क्या है? Expecting minimax जो है वो primarily expecting minimax जो है, I'll just show you here. This would have 3 levels.
you will have, let's say, the max level, then you might have a chance level, and then you will have the min level. तो इसमें max level है, followed by the chance level, followed by the min level. ठीक है, min के नीचे जितने चिल्ड्रन हैं वो min यूटिलिटी अडॉप्ट करेंगे, चांस के नीचे जितने भी हैं वो सारे के सारे जो हैं वो एक्सपेक्टेड यूटिलिटीज कैलकुलेट करेंगे, और ऑब्वियसली मैक्स जो है वो अपना मैक्सिमम एडवांटेज जो है वो कैलकुलेट करेगा. सो यू हैव अ मिक्स ऑफ बोथ मिनी मैक्स एंड एक्सपेक्टी मैक्स टुगेदर. ठीक है, दिस इज व्हाट यू कॉल एज द एक्सपेक्टी मिनी मैक्स बिहेवियर. So expecti minimax. So one is minimax, the second one is expecti max, and the third one is expecti minimax, which is a combination of rational as well as random behavior. So expecti minimax का मतलब जो है वो ये है कि your opponent may sometime, or maybe your opponent or you yourself can make a choice based upon some random decision, and at other times you can actually decide on your based on some rationality. तो जैसे लूडो के अंदर होता है, तो यू थ्रो द टॉस और डाइस आप थ्रो करते हैं, वहां से आप अपना नंबर ऑफ मूव्स या जितने आपने अपने जो प्लान है उसको कितना आपने मूव करना है वो डिसाइड होता है. लेकिन लेट्स से कि आपके पास 3 पॉसिबल मूव्स हैं और उन 3 पॉसिबल मूव्स में से कौन सी मूव आपने करनी है वो आपने खुद डिसाइड करना है, और वो ऑब्वियसली आप अपनी चॉइस जो है वो उस डिसीजन पे बेस करेंगे कि किसमें आपके अपोनेंट को ज्यादा नुकसान हो. ठीक है, that could be an example of expecting minimax. So one is trying to maximize the advantage, the other one is taking its turn based on some random process, but then as a result of that random process the choice is made of a move that minimizes the advantage of the other. Okay? So it's actually a mix of these two behaviors, which is the rational behavior as well as the random behavior. This is what you call as the expecting minimax behavior. Okay, so expecting minimax के अंदर, let's say here is an example of the expecting minimax. So you have the leaf nodes, आपके पास ये evaluations यहाँ पे 2 हैं. ठीक है, then you have the min node, this inverted triangle is the min level. ठीक है, then you have the chance node, and then you have the max node. ठीक है, so यहाँ पे relative advantage कैसे होगा? I'll just calculate one. So this is 2 and 2. Min would obviously go for the min of the 2, which is again 2. और यहाँ पे आपके पास min of the 2 is 1. Chance node उसके बाद आ जाता है. You calculate the expected utility. The expected utility from this route you will get as 1, or this route के ऊपर 0.5. So the expected utility is 1.5 on this side. ठीक है, and similarly expected utility इस side पे भी आएगी, and max would choose a move that has a higher expected utility. ठीक है, so let's just see कि यहाँ पे क्या है. This is what you will get at the min level, this is what you get at the chance level, and obviously max would choose the one that has a maximum expected utility. So यहाँ पे in between max and min you have a chance node, and that's actually a combination of min max and expecting max. अगर expecting max होता तो ये min nodes यहाँ पे ना होते, straight away utility expected utilities होती, और अगर ये min max होता तो यहाँ पे ये chance node ना होता. This would have gone. जी इब्राहिम, throughout this analysis जो evaluation है they are always with respect to max node. ठीक है, the relative advantage of maxing इस केस के अंदर. Okay, so this is what expecting max would look like. So let's just move on to some videos which I'll be showing regarding the pack. So let's say कि अगर आपका ghost random behave करता है और पैकमैन जो है वो मिनी मैक्स बिहेवियर है उसका. ठीक है,
So let's just see कि उस सूरत में क्या होगा. Okay, I'll just show you the video. And what is this video now representing? This video is representing कि आपका Pac-Man जो है that is Minimax, लेकिन आपका जो घोस्ट है वो रैंडम है. ठीक है, दैट मीन्स कि वो घोस्ट का बिहेवियर जो है वो रैंडम सिलेक्शन ऑफ मूव्स है. सो आई जस्ट शो यू कि ये कैसे काम करेगा. हाउ वुड द बिहेवियर चेंज. लेट्स प्ले दिस. नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड वीडियो. पहली वीडियो और सेकंड वीडियो में क्या था. Right, I'll just play it again and you can see the difference. And keep the first video in mind and now the second video also. Remember, ghost is random. उसको पैकमैन की तरफ मूव करना चाहिए था लेकिन वो पैकमैन की तरफ मूव नहीं कर रहा. वो रैंडम बिहेवियर. सो जैसे ही पैकमैन को मौका मिला टू मैक्सिमाइज इट्स एडवांटेज, इट्स एक्चुअली स्टार्टेड मूविंग इन दैट डायरेक्शन. ठीक है. अच्छा, लेट मी जस्ट शो यू अनदर वीडियो जिसमें Pac-Man is expecting Max और Ghost is random. अच्छा, expecting Max and Ghost is random. Okay, so I'll just share this and let's have this analysis के ये कैसे होगा. अच्छा, let's say कि ये आपके पास अब scenario है. What do you think? क्या move करेगा Pac-Man? What will be the move of the Pac-Man in this particular scenario? ठीक है, डाउन मूव. तो अगर ये फर्ज करें डाउन मूव करता है, या ये ऊपर की तरफ मूव करेगा या ये राइट की तरफ मूव करेगा. लेट्स से कि ये तीनों मूव्स हैं. ऐसा नहीं सही कि नीचे की तरफ मूव करेगा. एनीवन एल्स? जी दानियाल, व्हाट डू यू थिंक? इन तीन में से कौन सी मूव करेगा? रिमेंबर, आई रिपीट अगेन, पैकमैन इज एक्सपेक्टिंग मैक्स and the ghost could be random. सर डॉट किस तरफ है? अच्छा, डॉट किस तरफ है? डॉट नीचे की तरफ ही है. ठीक है, ये शायद मैंने ब्लॉक, वो व्यू ब्लॉक हुआ हुआ इस वजह से आपको नजर नहीं आ रहा. अच्छा, प्ले बटन शायद हाँ, उसके सामने आ गया. आ गया हुआ है. I'll just clear this. I'll just close this and let's see. हाँ, अब आपको क्लियर नजर आ रहा है. तो you can see, खैर अब आपको शायद डॉट नजर आ रहा होगा. ठीक है ना. So this is the dot here. ठीक है. So expecting max के केस के अंदर, remember, Pac-Man is ready to take the risk. ठीक है. तो it would move towards the dot irrespective of this कि ghost क्या कर रहा है, in a hope कि ghost कोई गलती कर दे. That means कि वो उसकी तरफ मूव करने की बजाय किसी और तरफ मूव कर जाए. ठीक है. तो उस सूरत में so you see the difference here. Expecting max behavior के ऊपर उसका difference जो है ना, I'll just play this again. ठीक है. So Pac-Man is ready to take the risk.
ठीक है. सो दैट्स द डिफरेंस. अगर ये मिनीमैक्स एजेंट होता पैकमैन, तो फिर वो कभी भी घोस्ट की तरफ मूव ना करता, अनलेस कि इट वुड हैव बीन एब्सोल्युटली श्योर कि घोस्ट जो है दैट इज नॉट मूविंग टुवर्ड्स. अब यहाँ पे वो रिस्क लेने के लिए तैयार है. ओके, सो दिस इज द एक्सपेक्टिंग मैक्स बिहेवियर of Pac-Man. Expecting max behavior of Pac-Man. ठीक है. There is also an interesting, small interesting video. अगर वो मुझे मिलती है तो I'll just try to show you कि इस केस में क्या होगा. हाँ, so this is an interesting one, and I'll just show you this one first. I'll just stop sharing and share again. अच्छा, this is an interesting scenario जी. So let's say कि ये scenario है आपके पास. ठीक है. यहाँ पे अच्छा, there is a small comment here. Let me just go through that. The value we assign to reaching the dot, would that affect the level of risk Pac-Man takes? Maz, you mean कि utility function की जो values आप assign कर रहे हैं? जी सर, जो हम उसको कहते हैं कि गोल रीच करने पे उसका जो रिवॉर्ड है, उसकी जो हम वैल्यू साइन करते हैं, अगर वो हम बहुत ज्यादा सेट कर देंगे तो वो तो फिर हर दफा रिस्क ले लेगा. हाँ, हर दफा रिस्क ले लेगा. लेकिन दैट्स व्हाई वी सेड कि अगर वो मिन मैक्स है तो मिन मैक्स के अंदर उसका सेट ऑफ मूव्स जो है ना वो चेंज नहीं होंगी, इररिस्पेक्टिव के वैल्यू ज्यादा हो या कम हो ऑफ योर एडवांटेज. लेकिन एक्सपेक्टिव मैक्स के अंदर जैसी वैल्यू ज्यादा करेंगे तो वो फॉरन रिस्क लेगा, अदरवाइज वो रिस्क नहीं लेगा. ठीक है. सो इसलिए वो लीनियर थैंक यू. ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो हमने बात की थी ना, दैट एक्चुअली स्टैंड्स हियर. अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, इस सिनेरियो में क्या होगा? And you can think of various possibilities. First possibility is that Pac-Man is min-max. The second possibility is that Pac-Man is expecti-max. अगर वो min-max है तो फिर वो क्या करेगा? और अगर वो expecti-max है तो फिर वो क्या करेगा? ठीक है. तो तैमूर का ख्याल ये है कि अगर वो मिनी-मैक्स है तो I don't think there is a way out. Obviously there isn't a way out. ठीक है. The only thing अगर वो min-max है तो it can only try to say finish the game as early as possible. That means कि वो रेड में जाके पंप कर जाए और गेम को खत्म करे. ठीक है. लेकिन अगर वो एक्सपेक्टिव मैक्स है तो फिर वो would take a chance of moving towards left. ठीक है. रीजन इज के इन अ होप के ब्लू गोस्ट जो है दैट माइट स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द पैकमैन, और अगर वो ये हरकत करती है ब्लू गोस्ट तो देन देयर इज अ चांस के वो वाइट डॉट्स को ईट करेगी. ठीक है. लेकिन समटाइम्स सम अनएक्सपेक्टेड मूव्स कुड आल्सो हैपन. ठीक है. सो लेट्स सी के वो अनएक्सपेक्टेड मूव क्या हो सकती है. ठीक है. लेट्स जस्ट सी. It's taking a bit longer than expected, but anyway, so that's the unexpected move. If I can just repeat it again, okay, it simply bumps into the red ghost. Okay. And that is something which you can try to explain कि यहाँ पे वो क्या कर रहा है Pac-Man. I mean, is it a mini-max Pac-Man? Yeah, is it expecting max Pac-Man? Or if it is expecting mini-max, ठीक है, you can try to figure out this. ठीक है. Ideally, अगर वो expecting max हो तो इस केस के अंदर expecting max would probably थोड़ा सा बेहतर रहेगा. लेकिन how are the ghosts actually behaving here? ठीक है. If you look at the ghosts, तो ghost क्या behavior show कर रहे हैं. ठीक है. So let's you simply have a look at the ghosts. Okay. So what do you think the ghosts are here? Are they expecting max or mini max in their behavior? So they are mini-max. Max. Yes, they are mini max, right? Because they are moving towards Pac-Man and they are trying to minimize the advantage of Pac-Man. But
the behavior of Pac-Man is something which probably you can't really explain that. Anyway, so this actually ends our discussion for